तो बच्चों, आज हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और स्पेशली हम मॉडुलस फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होता क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, it is denoted by f of x is equal to x, and this is the symbol for the x greatest integers, and it is a function. X greatest integer is a function and its domain is set of all real number and range is the set of all integers. And x greatest integer is the greatest integer less than and equal to x, and it is the greatest integer less than or equal to x। तो कहने का अभिप्राय यह है कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो एक इंटीजर होता है एंड विच इज either equal to x or less than and equal to x or less than x, and it is the greatest integer. Domain of this function is set of all real number and range of f is equal to z, set of integers. So this is the domain and this is the range of this function. तो बच्चों, हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिस्कस करने से पहले हम नंबर लाइन से इसे डिस्कस करते हैं। लेट दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। Therefore 2.3 greatest integer. The value of x is 2.3. So this is 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 पार्ट किए इसके, and this is 2.3. थर्ड पार्ट जो है ये 2.3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर? यदि हम इससे लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर आता है वो ही इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी। तो देयरफॉर 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2, बिकॉज 2 इज द फर्स्ट इंटीजर which is less than 2.3. Hence 2.3 greatest integer is equal to 2. Similarly 1.4 greatest integer की value, this is 1 and 1, 2, 3, 4, this is the point 1.4. तो बच्चों 1.4 ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब हम लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले जो इंटीजर आता है सबसे बड़ा, वैसे तो बहुत सारे इंटीजर हैं जो कि 1.4 से छोटे हैं, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, तो सबसे पहले जो है वो 1 आता है। तो therefore 1.4 greatest integer is equal to 1 because it is the greatest integer less than or equal to x. Similarly 3 greatest integers is
So this is the point 3, and it's the greatest integer. यदि ये खुद इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी. 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आएगी. 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी. 3.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है और देखना है कि सबसे पहला जो है वो बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा आता है. तो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x greatest integer. The definition of the x greatest integer is it is a function whose domain is set of all real numbers and range is set of integers, and it is the greatest integer less than or equal to x, and these are the examples of the greatest integers. Let us take one more example. Minus 1.7 greatest integer is equal to, this is minus 1 and here is the point minus 1.7. This is the representation of the minus 1.7, dividing this part into 10 equal parts and the 7th part will be minus 1.7. तो बच्चों हम जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे minus 1.7 की लेफ्ट साइड की ओर जब हम शिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले इंटीजर आता है ग्रेटेस्ट -2. तो देयरफॉर -1.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आएगी. इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -1.7 एंड दैट इज -1.7. लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा इंटीजर आंसर होगा. So this is the definition of the greatest integer and these are the some examples of the greatest integer of x. Let us discuss the graph of the greatest integer function. तो ये टेबल बनाना है बच्चों, x and f of x greatest integer. और टेबल में x की वैल्यू जो है वो x is greater than and equal to 0 and less than 1. x is greater than and equal to 1 less than 2. यहां पे इक्वालिटी नहीं लगानी है. x is greater than and equal to 2 and less than 3. x is greater than and equal to 3 and less than 4. इस तरीके से डिवाइड करना है क्योंकि इस इंटरवल में x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सेम रहती है. यहां पर x is greater than and equal to 0 and less than 1 हो, 0 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 0.1 पे भी, 0.2 पे भी, 0.999 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आएगी. तो इसलिए बच्चों यहां पे ये 0 आएगा और ये इंटरवल इस तरीके से डिवाइड करना होता है. इसी प्रकार से यदि हम 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाले, यहां पर 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू नहीं निकाली है क्योंकि 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चेंज हो जाती है, 0 से 1 शिफ्ट हो जाती है. तो 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1, 1.1, 1.2, 1.999 लेस देन 2 तक ये वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी. ये कारण है कि ये इंटरवल पूरे का पूरा सेपरेट लेना होता है. Similarly, x is greater than and equal to 2 and less than 3. 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2, 2.9 तक 999 तक x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 ही रहती है. सिमिलरली जब 3 की बारी आती है तो 3 पर जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाती है एंड सो ऑन अप टू 3.99 तक. तो इस तरीके से बच्चों ये टेबल इस प्रकार से लेना होता है जब x ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना होता है. और यहां पर नेगेटिव साइड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1. -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होती है और -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5 and so on -0.9
ये सारी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेंगे तो -1 आएगा सबसे पहले इंटीजर, राइट साइड को शिफ्ट नहीं होना है -0.1 से। राइट साइड को शिफ्ट करेंगे तो 0 आएगा, परंतु लेफ्ट साइड को शिफ्ट करके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी। तो इसलिए इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 आएगी, और इस इंटरवल में -2 और इस इंटरवल में -3 एंड सो ऑन। तो दिस इज द टेबल फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये टेबल बन गया बच्चों इस फंक्शन के लिए। अब हम इजली इसका ग्राफ जो है वो बना सकते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। तो हम देखेंगे ये फंक्शन जो है वो कैसा ग्राफ बनता है, कंटिन्यूस बनता है या डिसकंटिन्यूस। आओ बच्चों अब हम x ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना करके देखें और चेक करें कि ये ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो टेबल जहां पे हमने बनाया है और टेबल में सबसे पहला पॉइंट है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और इसके लिए x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमने 0 ली। तो यहां पर ये x की वैल्यूज हैं, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऊपर को y एक्सिस की ओर एंड x एक्सिस की ओर जो है वो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब 0 है तो 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है, 0.1 पे भी 0 है, 0.2 पे 0.999 पर भी x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 है। यही कारण है कि यहां पर एक डार्क लाइन 0 से स्टार्ट करके 1 तक लिखनी है, परंतु 1 के ऊपर x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए यहां पर हॉलो सर्कल बनाना है। इसका मतलब है कि यहां पर गैप पड़ गया ग्राफ में, और 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब 1 आ जाता है, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, जब 0.999 आएगा तो वैल्यू 0 ही रहेगी, परंतु जब 1 आएगा तो x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पर से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ, और ये 1 वैल्यू जो है वो रहेगी 1.9999 तक, क्योंकि if x is greater than and equal to 1 and less than 2, then x greatest integer is equal to 1 plus 1। तो यही कारण है बच्चों कि जब 1 से स्टार्ट करना है, 1 x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1.3 पे 1.999 पे भी 1 ही रहेगी वैल्यू, 1.999 पे भी वैल्यू 1 ही रहेगी, परंतु जैसे 2 आ जाता है तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो जाती है। तो इसलिए यहां पे हॉलो सर्कल बनाना है, मतलब कि 2 पर जो है वो x ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 नहीं है बल्कि 2 हो जाती है। इसी प्रकार से ये ग्राफ जो है वो बनेगा, और ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो टेबल है, टेबल के अनुसार इस प्रकार से बनाया जाता है। सिमिलरली अब नेगेटिव साइड, if x is greater than and equal to -1 and less than 0, then x greatest integer is equal to -1। x greatest integer की वैल्यू बच्चों -1 होगी जब ये इंटरवल दिया जाए, क्योंकि x is equal to -1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी -1, पूरी -1। यदि इंटीजर हो तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एज इट इज रहती है, सेम टू सेम। और जब ये वैल्यू जो है वो -1
से राइट साइड में होगी तो -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, 0.6, -0.7, -0.999 तक वैल्यू जो है वो सेम टू सेम -1 ही रहेगी, परंतु 0 पे वैल्यू 0 होगी और 0 से जैसे ही लेस वैल्यू लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 हो जाएगी। यही कारण है कि यहां पर 0 के ऊपर यहां पर जंप लगाना है और यहां पर हॉलो सर्कल बनाना है, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 होती है और 0 से थोड़ा सा भी लेफ्ट साइड को हम शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू -1 हो जाएगी और ये -1 वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू -1 तक रहेगी। तो ये कारण है कि राइट साइड में ये हॉलो सर्कल बनते जाएंगे और ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ से ही ये क्लियर है कि दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज देयर इज ए गैप इन द ग्राफ एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। जहां इंटीजर है वहां पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, परंतु जहां पे नॉन इंटीजर पॉइंट है तो वहां पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। जैसे 0 से शुरू होकर के यहां तक ग्राफ कंटिन्यूअस है, परंतु इंटीजर पर ये गैप पड़ जाता है। 0 पे भी गैप पड़ गया, -1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी। तो इन दिस वे वी कैन आल्सो प्रूव बाय दिस ग्राफ दैट दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट द इंटीग्रल पॉइंट्स। तो आओ बच्चों, अब हम एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं, मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन। मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन f of x is equal to x modulus is equal to x if x is greater than 0। यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके मॉडुलस की वैल्यू सेम टू सेम x के बराबर आएगी। एंड इफ x इज इक्वल टू 0 देन 0 का मॉडुलस इज इक्वल टू 0। इस फंक्शन को हम इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। x is equal to modulus is equal to x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0, and minus x if x is less than 0। यदि x की वैल्यू खुद नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस जो है वो -x हो जाएगा और ये -x जो है वो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और -x भी पॉजिटिव ही होगा बिकॉज हियर इन दिस केस x इज नेगेटिव। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव because all of these are positive, either x is greater than 0 or x is equal to 0 or x is less than 0। तो बच्चों आओ अब हम इसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने से पहले हमें इसका टेबल बनाना होगा। तो टेबल बनाने के लिए इस बार हमें x की वैल्यू लेनी है 0, 1, 2, 3, -1, -2 and -3 and so on and so on। These are the values of x and these are the values of x modulus। तो बच्चों 0 का मॉडुलस जो है वो 0 होता है, 1 का मॉडुलस 1 होता है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0, therefore 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ 2 इज 2, मॉडुलस ऑफ 3 is 3 and so on, मॉडुलस ऑफ 4 is 4 and similarly
minus 1 modulus. X is less than 0. Minus 1 is less than 0. Therefore, we have to apply this definition in order to find the modulus of minus 1. That will be equal to minus into minus 1, value of x. That will be again plus, again 2, and again 3, and so on. So here, all the values of x modulus are positive in this table. Minus 1.7 modulus is equal to minus 1.7 modulus is equal to 1.7. 1.7 modulus is equal to 1.7. तो मॉडुलस जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है. तो इस फंक्शन की डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज set of positive real numbers. Because x modulus is always positive और कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर इसमें, और x की वैल्यू नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. तो डोमेन जो है वो इस दायरा जो है वो x का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज जो है वो इसकी these are the values of the functions corresponding to the values of the x, where x belongs to the domain. So corresponding values of x modulus are always positive real numbers, hence range is r plus and domain is the set of all real numbers. Now let us draw the graph of this modulus function. The graph of the modulus function is given by this is x-axis and this is y-axis. Drawing the point number line 0 to 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. This is value of y 1, 2, 3, 4, and so on. और नीचे को y-axis में minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and so on. Now 0 का modulus is 0. This is the point. Modulus of 1 is 1. This is the point. Modulus of 2 is 2. This is 2 and this is the value of modulus, that is 2. Modulus of 3 is 3. Drawing the perpendicular line and from 3 and 3 we get the point of intersection is 3. And 4 का modulus 4. And so on, modulus of 5 is 5. Now joining these points, we get straight line. This is a straight line. And similarly, modulus of minus 1 is again plus 1. This is the point. Modulus of minus 2 is again 2. This is the point. Minus 3 for modulus. Again 3, this will be the point, and modulus of minus 4 is 4, this will be the point, and so on. Modulus of 5 will be 5, minus 5 will be 5. Again joining these points, we get again straight line. This is the straight line representing the modulus of. तो बच्चों मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ इस प्रकार से बनता है. दीज आर द टू स्ट्रेट लाइन, वन स्ट्रेट लाइन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड स्ट्रेट लाइन इन दी सेकंड स्ट्रेट लाइन. सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरी स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x मॉडुलस. दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस x. तो इस प्रकार से बच्चों ये ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि देयर इज नो गैप इन द ग्राफ ऑफ द मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन. देयरफॉर द मॉडुलस ऑफ ए फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल द रियल नंबर्स.
कोई भी इंटरवल ले लो, द ग्राफ इज ए कंटिन्यूस ग्राफ, हेंस इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो बच्चों, ग्राफ के माध्यम से भी हम किसी फंक्शन के बारे में बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि ये डिसकंटिन्यूस है। दैट्स ऑल।